मेरे पास अब जगह है वो मिलनी चाहिए। हमने इतना काम किया। We are really thankful from the headquarters for doing yeoman service to the people of this district. This hospital has grown well and it functions almost कंबर साहब सर मुझे पॉलिटिक्स में लाने वाला कंबर साहब थे सर। और ज़ाती तौर पे सर मैंने बचपन में अपना एक भाई खोया था और आज मैंने अपना एक और भाई खोया है सर। मेरे लिए एक भाई से उपहार देगा। मुझे मालूम है हमारे घर पे वो एक सेंट की तरह सिंपल ज़िंदगी गुजारा उन्होंने। मैं ना प्रिंसिपल था, इंटीग्रिटी उसमें बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ था सर। आप यकीन नहीं करोगे अभी तक उनके पास घर नहीं था। तो उनका ऐसा ये था सर, वो गरीबों का मसीहा था, सोशल एक्टिविस्ट था, कम्युनिटी ये कम्युनल हारमोनी के लिए वो जाने जाते थे। कारगिल में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सोशल वर्क में इतना बड़ा नाम किया है कि अगर उनको कारगिल का गांधी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और एक रिक्वेस्ट आई है कि वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो उनके नाम कर दिया जाए।
जो जगह है वो दिल्ली चाहिए। Before formal commencement of the program, I request everybody to kindly rise up in honor of the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। First of all, I'd like to request our Honorable Chief Executive Councillor Sir to kindly facilitate our His Excellency the Honorable Lieutenant Governor of Ladakh with traditional shawl and presentation of memento. Thank you, sir. Thank you, sir. In this historic moment, we have witnessed the formal unveiling of the honor of highest degree being conferred upon our beloved son of soil Shri Kambar Ali Akhund by the Union Territory Administration in recognition of his legacy of service to mankind by renaming our premier health institution in his memory. And what better way than to get it unveiled at the august hands of the highest authority of our Union Territory. Your Excellency, your magnanimous presence among us fills our hearts with inspiration
encouragement, confidence and hope. This recognition not only reflects the exemplary life of service to humanity Shri Akhon has led, but it also is a testimony to the commitment of UT administration in honoring the sentiments of the local people. The journey of Shri Kambar Ali Akhon sir and this hospital has been quite similar in terms of serving the people with utmost dedication and sincerity and always being available for the people. Late Shri Kambar Ali Akhon possessed a personality with a rare combination of impeccable character, unflinching honesty, deep dedication, and an unbelievable humility. This hospital, since its inception, has grown steadily over the decades and today stands as a symbol of excellence and service to public health care as a 200-bedded hospital. Following the formation of Union Territory, a kind of revolution was ushered in the field of healthcare in our district, in our Union Territory actually. In terms of modern infrastructure, modern machinery and equipments, and availability of skilled health workforce. Ladies and gentlemen, a very warm good morning to all of you here. It's a proud privilege for the Health Department to have in our midst the head of the Union Territory, His Excellency the Lieutenant Governor, Shri Vinay Kumar Saxena sir, in our midst. Thank you sir for inaugurating the hospital, the blood bank, as well as the nursing college. I'd also like to welcome our Chief Executive Councillor and his team of Executive Councillors to this function. A warm welcome to our Honorable MP, Mr. Hanifa Jan, to this function as well. All doctors, staff and other technicians of this hospital, we are really thankful from the headquarters for doing yeoman service to the people of this district. This hospital has grown well and it functions almost like a good private hospital, and we are very proud of it. And without wasting much time, I'll just bring across one good news. The long-awaited DPC promotion for doctors will be held shortly. We are submitting to UPSC, and there were some bottlenecks because our Chief Secretary had to be appointed as a Chief Vigilance Officer by name by the Ministry of Home Affairs. That's why we lost around 2 months' time. So now he has been appointed, and in a short while, most of the doctors here will be getting their promotion. Once again, I welcome everybody to this function. Thank you. Now I'd like to invite our Honorable Member of Parliament, Shri Hanifa sir, to address the gathering. Honorable Lieutenant Governor Shri Vinay Kumar Saxena ji, Honorable Chief Executive Councillor Dr. Jafar Akhon Sahab, Honorable Executive Councillor, Administrative Secretaries, District Officers, और यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए कमर साहब के चाहने वाले, अस्सलाम वालेकुम जुले। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि एलजी साहब को यहाँ से तशरीफ़ भी लेना है। मैं फ़कत यहाँ पे एलजी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि कमर साहब के ज़िंदगी के ऊपर अगर डिस्कशन करें या बातें करें तो इतने वक्फे में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। लिहाजा मैं एज एन एमपी मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट के आवाम की तरफ से एलजी साहब का दिल से उन सारे करगिल के आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जो हॉस्पिटल जो है कमर साहब के नाम पे डाला है। और एज एन नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर लद्दाख के हेड के हिसाब से मैं अपने पार्टी के जो आला कमान है, हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, और करगिल के एक लास्ट स्टेज पे जो हमारे वर्कर हैं, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। ये बहुत ही एक डिजर्विंग एक चीज़ था
सदियों तक कमर साहब का नाम रहेगा और आने वाले जनरेशन जो आपने इस हॉस्पिटल को उनके नाम पे रखा है सर, तो आने वाले जो जनरेशन है वो भी कमर साहब के बारे में जानकारी लेंगे, जानेंगे कि कमर साहब का जो इस लद्दाख के रीजन के प्रति, यहाँ के खासकर गरीबों का वो मसीहा था सर। नॉर्मली पूरे अवाम, मेरे ख्याल से ये मैं रसूख से कहता हूँ, जब वो इस दुनिया से गुजर गए, चले गए सर, तब हमें मालूम हुआ, हमें एहसास हुआ कि कमर साहब का असली शख्सियत क्या था। क्योंकि सर एक पॉलिटिशियन जब दुनिया से गुजरता है तो उनके अपने लोग, अपने पार्टी के लोग तो उनको याद करते हैं, लेकिन कमर साहब जब गुजर गए सर, जम्मू में उसका आखिरी सांस वहाँ जम्मू में लिया, वहाँ से लाया, करगिल से लेते हुए संग्राम में उनके आखिरी आरामगाह तक पहुँचने तक, चाहे हमारे पार्टी के लोग हो, चाहे अपोजिशन के लोग हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, मैं हैरान हुआ सर जब उस प्रोग्राम के बाद जब मैं जाने के लिए ले पहुंचा, वहाँ पे लोग बहुत अफसोस कर रहे थे सर। कुछ लोगों को तो जब देखा दुनिया में सर, ईरान में, हमारे पाकिस्तान में हमारे जो कम्युनिटी से यहाँ से जब होने लगा, ऐसे लोग भी अब जानकारी लेने लगा कि ये शख्सियत क्या था इसका। तो जब उनको जानकारी मिला, हर कोई इस पर अफसोस कर रहा था सर। ये बहुत ही जेन्युइन एक ये आपने ये डिसीजन लिया है सर। इसके लिए मैं एक बार फिर, क्योंकि सर टाइम नहीं है, कमर साहब सर मुझे पॉलिटिक्स में लाने वाला कमर साहब थे सर। और ज़ाती तौर पे सर मैंने बचपन में अपना एक भाई खोया था और आज मैंने अपना एक और भाई खोया है सर। मेरे लिए एक भाई से उपहार देगा। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you so much, sir. Indeed, Kambar Saab was a personality who had risen above partisan politics, risen above any identity, and was held with respect, regard, and love in everybody's heart. And I'd like to invite our Honorable Chief Executive Councillor, sir, to share a few words. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीकुल हज़रत इब्न अल-हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फी हाज़ि साअ फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु व रज़क़तहु तुवत्तिहु फ़ी तवीला। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना सर, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, यहाँ के हमारे ऑनरेबल एमपी साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, ऑनरेबल काउंसलर्स, डायरेक्टर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, तगरीन चीवी तस्क्योद योदखान यंतम शरबॉन गामा, अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्कार। सर मेरे पास सर मैं ये एहसास, ये जिम्मेदारी ये कभी नहीं बोल सकता। आज हमारा मिला जुला हमें एहसास हो रहा है, एक खुशी भी है कि आपने उनके सर्विस को रिकग्नाइज करते हुए इस प्राइमरी इंस्टीट्यूशन को उनके नाम किया है। दूसरा ये सर, आज 2 महीने हो गया वो हमसे जुदा हो गए सर, मगर मुझे लगता है कि उनके उसमें मुझे आपकी शक्ल में एक भाई मिला। आपका सर ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब का, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ और जितने भी हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी से डीसी साहब का, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। वाकई में ये वो इस काबिल थे। मुझे मालूम है हमारे घर पे वो एक सेंट की तरह सिंपल ज़िंदगी गुजारा उन्होंने। मैं ना प्रिंसिपल था, इंटीग्रिटी उसमें बिल्कुल कूट के भरा हुआ था सर। आप यकीन नहीं करोगे, अभी तक उनके पास घर नहीं था। तो उनका ऐसा ये था सर, वो गरीबों का मसीहा था, सोशल एक्टिविस्ट था, ये कम्युनल हारमोनी के लिए वो जाने जाते थे। एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स आया सर। उनके दौर में ही हमारे फीमेल लिटरेसी बहुत कम थे, तो उन्होंने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू करके ये फीमेल्स को यहाँ पे एजुकेशन में लाने का काम किया। फिर पीपल फ्रेंडली था। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर, क्योंकि आपको तशरीफ़ लेना है। फिर एक बार अपने आवाम की तरफ से, अपनी तरफ से, मैं एक छोटा भाई की हैसियत से सर आपको दिल की अमीर गहरों से बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर।
वाकई में आपने आते ही इस 2 महीने के अंदर जो आपने हमें एक न मिटने वाला एक आपने तोहफा दिया है सर, वाकई ये हम रहती दुनिया तक याद रखेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र अख़ून साहब, मोहम्मद हनीफ़ा जान साहब, पुश्तोंग ताशी साहब, हमारे सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़, डायरेक्टर्स, पैरामेडिकल फोर्स के सभी अधिकारीगण, डॉक्टर्स, स्टाफ, टेक्नीशियंस, नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट्स, लेडीज जेंटलमैन, आदाब, जूले। आज मैं यहाँ इस हॉस्पिटल की रीनेमिंग सेरेमनी के लिए आया हूँ और मुझे याद है कि करीब 15 दिन पहले जब मुझे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि कारगिल में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सोशल वर्क में इतना बड़ा नाम किया है कि अगर उनको कारगिल का गांधी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और एक रिक्वेस्ट आई है कि वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो उनके नाम कर दिया जाए। मुझे याद है कि शायद इस डिसीजन को लेने में मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगे और मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा कि आप उसकी फाइल भेज दीजिए, मैं उसे अप्रूव कर दूंगा। जब आप ऐसी शख्सियत को एक इज्जत फरमान करते हैं तो यकीन मानिए कि इज्जत उनको नहीं बल्कि आपको मिलती है, क्योंकि आपने उस नाम को जिंदा रखने का काम किया है। तो मैं अपने को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मुझे इस काम को करने का मौका मिला और आज मेरे हाथों से जनाब उमर अली अख़ून मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम पब्लिक के सामने जाहिर किया गया। उनके बारे में जितना मुझे बताया गया उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो वो मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र भी रहे, फर्स्ट चेयरमैन भी रहे CEC लद्दाख कारगिल, और उसके साथ साथ यहाँ के अवाम के साथ साथ उन्होंने जो स्टूडेंट्स के लिए काम किया वो काबिल तारीफ है। और ख़ास तौर से उन्होंने महिलाओं की पढ़ाई के लिए जो है बहुत जोर दिया। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि अगर परिवार में एक महिला पढ़ती है, सशक्त होती है, तो वो पूरा परिवार जो है सशक्त हो जाता है। तो उन्होंने जो काम किया है उस कामों को जो है शायद शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ की आने वाली जनरेशन उन्हें याद करेगी। मैं इस बात से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि यहाँ के लोग, मैंने देखा, पब्लिक सर्विस के लिए बहुत आगे आते हैं। मैं 3 दिन बल्कि 3.5 दिन से कारगिल में हूँ और मैंने तमाम प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं जिसमें हमारे
अखून साहब ने शिरकत की, हनीफा जान साहब ने शिरकत की, उसके साथ साथ यहाँ के तमाम जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो भी हमारे साथ आते रहे और हर प्रोग्राम में शामिल होते रहे। जो मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी, एक जज्बा देखा लोगों के अंदर कुछ करने का, वो काबिल तारीफ़ है। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसी जज्बे के साथ लद्दाख की सरजमी को सेवा करते रहें, इसके आगे बढ़ाते रहें। और जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर मैं किसी भी काबिल हूँ तो उसमें ज़रा सा भी संकोच न करें, मैं हमेशा हाजिर हूँ। मैं एक बार फिर मोहम्मद जाफ़र अखून साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस नेक काम में शामिल होने का मौका दिया। और आज जिस हॉस्पिटल का नाम उमर अली अखून साहब के नाम जो किया गया, उसके इस प्रोग्राम में शामिल होने का भी मुझे मौका मिला। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम सब मिलकर जो उन्होंने हमें सीख दी है, जो उन्होंने हमारे लिए एक दायरा बनाया है कि किस दायरे में रहकर हम काम कर सकते हैं समाज के लिए, उसको ध्यान में रखकर काम करते रहेंगे और लोगों को एक सीख देंगे कि कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप महलों में ही रहें तभी आप सोशल वर्क कर सकते हैं। आप एक छोटे से मकान में रहकर भी, आपके पास कुछ भी ना हो उसके बावजूद भी समाज सेवा कर सकते हैं। इसके लिए किसी आपको बड़े महल की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर उमर साहब को इज़्ज़त बख्शी। और मैं आशा करता हूँ कि उनके नाम को आप सब रोशन करने में पूरा सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now we shall conclude the program with once again recitation of our national anthem. I request everybody to kindly stand up in honor of the national anthem, and I ask the students of JNM to kindly come forward for reciting the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.